Hello students, this is Abhilash from Vedantu. I'm your chemistry master teacher here, and we are continuing with our session on ionic equilibrium, right? So this series is where we are looking at some of the important topics within ionic equilibrium. As I've already told you before, ये सारे के सारे topics नहीं cover करना है हमें ionic equilibrium का. I'm only looking at some of the topics where a lot of students have asked me doubts, right? So in the first part of this series, what we did was we looked at like the basics related to ionic equilibrium, properties of water, and like basic definition of what you call as pH and stuff, and we looked at we reached till what you call as weak acids, right? So weak acids के लिए using like Oswald dilution law, or like speaking about the equilibrium of weak acids and using approximations, we found out pH of a weak acid, right? Now going further, in this session we are going to look at the how to do calculation for pH of mix of acids. Now specifically, I mean, if you remember in the last session we had looked at calculating pH of mixture of strong acids. That is relatively easier. But as far as mixture of weak acids and something else, be it like strong acid or be it another weak acid, then it gets a bit different, right? What you have is like a common ion effect coming into picture when you have like when you have two strong acids, they don't influence each other's dissociation because these are strong acids and they show 100% dissociation nonetheless. But as far as weak acids are concerned, their dissociation would be reduced by the presence of another source of H plus, right? Because you can understand weak acid के dissociation में H plus जो आपका आ रहा है product side में है, तो आप externally कहीं से भी H plus उसमें डालोगे तो equilibrium backward shift होगा, dissociation कम हो जाएगा, alpha का value कम हो जाएगा, right? So because of presence of H plus from an external source, be it strong acid or another weak acid, the dissociation equilibrium is going to shift backwards because you are indirectly adding H plus, which is a product. I mean, we are adding H plus, which is a product. So the equilibrium shifts backward and we say that alpha ka value will decrease, right? So going further, so what do you do? I mean, there are two type of things that you could see here. I mean, in fact, three, right? So weak acid plus a strong acid, या फिर weak acid plus a weak acid, monoprotic दोनों, या फिर weak acid monoprotic plus diprotic or a triprotic weak acid, right? So as far as this first slide is concerned, what we are looking at is a mixture of a strong acid and a weak acid, right? So for approximation, what we are saying here is that for approximation, we can neglect the H plus ions coming from the weak acid solution and calculate the pH from the concentration of strong acid only, right? Now this is the first approximation that we have. This will depend again, like okay, आपका अगर H plus contribution from a strong acid is significant enough, then we can ignore the H plus coming from weak acid. That is the approximation. This is like first case. Other case would be when H plus from your strong acid is decently low concentration. Now think about this. आपके पास एक weak acid भी है, HA है, which is giving you H plus plus A minus. अब इसमें जो contribution है, अगर कोई और acid नहीं होता, weak acid or strong acid or कुछ भी नहीं होता, तो in the last session as we had seen, H plus would have been root of KAC, right? तो stand alone, अगर ये weak acid alone होता, तो first thing that you have to check is what is root KAC? What is the standalone value of H plus that will be contributed by this weak acid if this was alone present? वो एक बार आप calculate करके देखो. क्यों? Because then you compare it with the H plus coming from the strong acid. अगर आपको लगे कि strong acid से जो H plus directly आ रहा है, that is significantly larger than your H plus contribution from weak acid. If the weak acid alone was there, then ignore the weak acid. तो इसके लिए what do we say? Roughly अगर 10 times से ज़्यादा है H plus contribution from strong acid, then we can ignore the contribution of H plus from weak acid, right? So what do you do? Find out root KAC nonetheless. ठीक है, आप अगर mix वगैरह कर रहे हो, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 0.2 मोलर HCl है, 0.2 मोलर CH3COH है, मिक्स कर रहे हैं, तो
अंडरस्टैंड कि आपको उसमें एक्चुअल फाइनल कॉन्सेंट्रेशन एक बार निकालना पड़ेगा, C1 C2 दोनों के इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशंस निकालने पड़ेंगे, इंडिविजुअल फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। नॉर्मली अगर इक्वल वॉल्यूम्स ऐड करेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन हाफ होगा। आगे विल सी इन वन ऑफ द क्वेश्चंस दिस विल गेट क्लियरर, बट या पॉइंट इज आप पहले क्या करोगे, रूट KAC कैलकुलेट करके देख लो वीक एसिड के लिए, और अगर आपको दिखे कि ये H+ कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड से 1/10 से भी कम है तो फिर इग्नोर द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ H+ फ्रॉम योर वीक एसिड and assume that all the H+ is coming from the strong acid, right? So what we are saying is, let's say the strong acid concentration H+ coming from strong acid is C1 and let's say weak acid का concentration monoprotic ही लिया हुआ है यहाँ पे HA, तो इसमें let's say it is C2, right? तो what we will say is C2 into 1 - alpha हो जाएगा, और C2 alpha will be coming from this dissociation and C1 is the contribution from strong acid, so we'll say C1 plus C2 alpha is the total H+ in the solution at this point in time, ठीक है। अब ये alpha will be less than the alpha root KA/C, जो अगर अकेले weak acid होता तो उसमें जो root KA/C आता है alpha उससे कम आने वाला है ये, तो आप एक बार root KA/C भी करके देख लो। जैसे मैंने बोला था पहले वाले में भी कि आपको सबसे पहले एक चीज तो चेक करना पड़ेगा रूट KA/C, अगर ये 0.1 से नीचे है तो आपका अप्रोक्सीमेशन वगैरह वैलिड है, यहां पे रूट KA/C से भी कम आने वाला है, राइट? तो कीपिंग दैट इन द बैक ऑफ आवर माइंड वी कैन से दैट C2 alpha probably can be neglected। कब नेग्लेक्ट करना है, यू अंडरस्टूड, अगर H+ का कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड सिग्निफिकेंटली ज्यादा है तो, वरना जैसे वो पानी वाले केस में किया था पिछले क्लास में कि आपको पानी का भी कंट्रीब्यूशन H+ का लेना पड़ेगा, वैसे टाइप्स एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके आपको अल्फा निकल जाएगा, दैट इज द पॉइंट, राइट? So what we are saying is Ka of this weak acid will be C2 alpha plus C1 into C2 alpha divided by C2 into 1 - alpha, and alpha is going to be significantly lower than 1 कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ H+ फ्रॉम समवेयर एल्स, वैसे भी अल्फा कम होने वाला है, राइट? So the weak acid's dissociation will be further suppressed because of the presence of the strong acid. This is what I was talking about, what you call as common ion effect, right? So let's look at an example to get a bit better understanding about this, right? So calculate the pH of 0.1 molar 10 to power -1 molar HCl and 10 to power -3 molar CH3COH। तो आपके पास एक सॉल्यूशन है जिसमें दे हैव सेट कि 10 to power -1 molar HCl है और 10 to power -3 molar CH3COH है, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है, ये डायरेक्टली दिया हुआ है, राइट? ऐसे नहीं कि 0.1 और 10 to power -3 मोलर मिक्स कर रहे हैं, उस केस में होता है इक्वल वॉल्यूम मिक्स कर रहे होते हैं तो आधा आधा करना पड़ता, तो डिवाइड बाय टू करना पड़ता। यहाँ पे सीधा दिया हुआ है कि इन दोनों का कंसेंट्रेशन ये है, राइट? नाउ स्टैंड अलोन में अगर आप कैलकुलेट करना चाहो रूट KAC करके, तो ये 2 × 10 to power -5 × 10 to power -3 रूट KAC अगर आप कैलकुलेट करोगे तो रूट ऑफ 2 × 10 to power -8 है, विच मीन्स अगर ये 10 to power -3 COH अलोन होता, ठीक है, वो अलग बात है कि इस केस में आपको वो जैसे मैंने बोला अल्फा रूट KA/C यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 0.1 से ऊपर है, तो यहाँ पे वो अप्रोक्सीमेशन, अगर स्टैंड अलोन होता तो अप्रोक्सीमेशन नहीं कर सकते, आपको क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ता, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट क्योंकि कॉमन आयन इफेक्ट है तो अल्फा बहुत कम होने वाला है इससे, तो वी डोंट हैव टू बी वरीड अबाउट इट। तो ये आपको दिख रहा है स्टैंड अलोन रूट KAC जो है 2 × 10 to power -4 होता, जो कि इससे तो काफी कम है, तो वी कैन आउटराइट से दैट H+ विल बी 0.1 मोलर, H+ फ्रॉम वीक एसिड कैन बी कंप्लीटली नेग्लेक्टेड। तो ये आया आपके पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COH इज ऑलमोस्ट गोइंग टू बी C इटसेल्फ बिकॉज अल्फा कम है, एंड C alpha CH3CO- and H+ will be 10 to power -1 0.1 molar plus C alpha which we can approximate as 0.1 itself, क्योंकि C alpha कम आने वाला है, राइट? अब H+ का नहीं Ka का एक्सप्रेशन अगर लिखें तो Ka शुड बी इक्वल टू C alpha into 0.1 डिवाइड बाई C, मतलब C कैंसिल हो गया, अल्फा मिल गया आपके पास 2 × 10 to power -4 दिख रहा है आपको। अगर स्टैंड अलोन होता तो अल्फा का वैल्यू √2 × 0.1 आता, राइट? तो इनफैक्ट ये सेम चीज हमने पिछले क्लास में कैलकुलेट किया था, उसमें आया था 1.1314 आया था अल्फा, राइट? लेकिन यहाँ पे उससे बहुत कम आया, क्यों? क्योंकि कॉमन आयन H+ कमिंग फ्रॉम HCl की वजह से इक्विलिब्रियम बहुत ही बैकवर्ड शिफ्ट हो गया और अल्फा का वैल्यू बहुत कम हो गया 2 × 10 to power -4, और H+ कमिंग फ्रॉम CH3COH अलोन अगर आपको कैलकुलेट करना है तो वो C alpha आएगा, तो 2 × 10 to power -4 into 10 to power -3 2 × 10 to power -7। तो यू कैन सी बहुत कम कॉन्ट्रीब्यूशन है CH3COH फ्रॉम दिस इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एटलीस्ट, राइट?
तो ये रिलेटिवली सिंपल क्वेश्चन है, इसमें सीधा H+ लेना था आपको कमिंग फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड. लेट्स लुक this question. In this next question, let's just see, right? तो आपके पास एक मिक्सचर है. In this question, HCl is given as 10 to power minus 4 molar. छोटा वैल्यू आ गया, पिछली बार 0.1 था, इस बार काफी कम कर दिया. CH3COH is 10 to power minus 2 molar. Ka वैल्यू वही 2 into 10 to power minus 5 है. अब अगर मैं रूट KC करूं तो you can see root 20 into 10 to power minus 8, which means approximately 4 point something into 10 to power minus 4 आता. स्टैंड अलोन अगर ये CH3COH अलोन होता तो 4 point something into 10 to power minus 4 होता, जो कि इससे कंपेरेबल है. तो इस बार वी कांट नेग्लेक्ट द कंट्रीब्यूशन ऑफ CH3COH फ्रॉम इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, राइट. तो अपन लिखेंगे ओके C into 1 minus alpha, C minus C alpha हो गया, CH3COH, C alpha मिला प्लस 10 to power minus 4, क्योंकि H+ फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड तो सीधा मिलने वाला है, उसका कोई डिसोसिएशन में it's a strong acid, so it's going to dissociate to 100%, and your HCl will give you 10 to power minus 4 molar H+, right. तो ये total H+ is this much. Now Ka के एक्सप्रेशन में आया 2 into 10 to power minus 5 is equal to C alpha into 10 to power minus 4 plus C alpha divided by C into 1 minus alpha. Again root Ka by C अगर मैं करूं तो root of स्टैंडअलोन CH3COH के लिए रूट ऑफ 2 into 10 to power minus 5 divided by 10 to power minus 2, मतलब रूट 20 into 10 to power minus 4, which means 0.04 टाइप्स आएगा. अगर ये अकेले होता, ठीक है, तब भी अल्फा का वैल्यू जो है 0.04 है, मतलब काफी कम है, राइट. विच मीन्स ये कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से तो और कम होने वाला है. तो इवेंचुअली अपना 4 point something into 10 to power minus 2 से भी कम आने वाला है अल्फा. वील सी समवेयर डाउन द लाइन, राइट. तो ये अब इट इज अ क्लियर केस दैट वी कांट इग्नोर द H+ कमिंग फ्रॉम योर वीक एसिड दिस टाइम. अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं क्वाड्रेटिक की तरह, राइट, तो ये C का वैल्यू जो है 10 to power minus 2 डाला और ये इसको सॉल्व किया तो आपके पास इवेंचुअली अल्फा का वैल्यू आया 4 into 10 to power minus 2. कैलकुलेटेड स्टैंड अलोन वैल्यू होता 4 point something into 10 to power minus 2, उससे थोड़ा सा कम हुआ, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा HCl नहीं डाला हमने. 10 to power minus 4 टाइप C है जो कि उसके खुद के स्टैंड अलोन वैल्यू के कंपेरेबल है, तो बहुत डिक्रीज नहीं हुआ. इसको क्वाड्रेटिक सॉल्व करके इवेंचुअली आया अल्फा 0.04, राइट. अब इंडिविजुअली H+ कमिंग फ्रॉम CH3COH अगर मैं कैलकुलेट करूं तो C alpha है, तो C into alpha मतलब 10 to power minus 2 into 4 into 10 to power minus 2, मतलब 4 into 10 to power minus 4 हो गया. 4 point something होता अकेले होता तो, राइट. अब यहां पे H+ कमिंग फ्रॉम HCl और ऐड कर दो तो टोटल H+ आ गया आपके पास 5 into 10 to power minus 4, 4 into 10 to power minus 4 इधर, 10 to power minus 4 उधर, दोनों मिला के 5 into 10 to power minus 4 pH कैलकुलेट कर लोगे आप. OH माइनस, ये एक क्वेश्चन में आप pH OH माइनस CH3CO माइनस भी पूछा हुआ. अब ये OH माइनस के लिए क्या करोगे, H+ मालूम है, टोटल H+ 5 into 10 to power minus 4 है, तो H+ into OH माइनस हमें पता है कि Kw होना चाहिए 10 to power minus 14, तो उससे आपको OH माइनस मिल जाएगा 10 to power minus 14 डिवाइड बाय 5 into 10 to power minus 4 आएगा 2 into 10 to power minus 11, राइट. नाउ H+ कमिंग फ्रॉम CH3COH तो हमने कैलकुलेट किया. परसेंटेज ऑफ H+ फ्रॉम CH3COH अगर कैलकुलेट करना हो तो 4 into 10 to power minus 4 डिवाइड बाय 5 into 10 to power minus 4 into 100, 80% of the H+ is coming from weak acid. अब परसेंटेज ऑफ H+ फ्रॉम H2O, थिंक अबाउट दिस. आपके पास ये जो सोल्यूशन है इसमें OH माइनस आया कहां से, वाटर से. तो जितना H+ वाटर से मिला उतना ही H+ उतना ही OH माइनस भी आपके सोल्यूशन में होगा. तो OH माइनस अगर 2 into 10 to power minus 11 है तो H+ कमिंग फ्रॉम वाटर अलोन will be 2 into 10 to power minus 11 as well, right? क्योंकि OH माइनस का तो और कोई सोर्स तो यहाँ पे डायरेक्टली है नहीं, तो आपके पास जो भी OH माइनस आएगा उतना ही होना चाहिए H+ कमिंग फ्रॉम वाटर, राइट. तो क्वेश्चन में pH तो हो गया, OH माइनस कैलकुलेट कर लिया Kw यूज करके, CH3CO माइनस C alpha है तो वो भी आ गया, और परसेंटेज ऑफ H+ फ्रॉम CH3COH भी आ गया 80%, और परसेंटेज ऑफ H+ कमिंग फ्रॉम योर H2O भी आ गया. परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो 2 into 10 to power minus 11 डिवाइड बाय 5 into 10 to power minus 4 into 100, तो बहुत ही छोटा परसेंटेज है, ऑब्वियस है, बिकॉज ऑल द H+ is coming from either HCl or from your CH3COH. It is not coming directly from water at least, right? So I hope this question is clear. Now let's go to the next question, right? अब इसमें there is a
मिक्सचर ऑफ H2S एंड HCl. अगेन सेम स्टोरी, आपके पास H2S इन प्रेजेंस ऑफ HCl विल डिसोसिएट लेस. ठीक है, अब ये मल्टीप्रोटिक पॉलीप्रोटिक एसिड्स का हमने किया नहीं. अगला सेशन जो आपका आएगा 12th को, दैट इज ऑन पॉलीप्रोटिक एंड आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड इट राइट अवे, सो आई नो इट इज गोइंग टू हैपन राइट नाउ. बट या पॉइंट इज हमने किया नहीं है डाइप्रोटिक अभी तक. अगले वाले में डाइप्रोटिक अपन करेंगे सेशन में, बट स्टिल आई एम जस्ट इंट्रोड्यूसिंग इट हियर. आपको थोड़ी सी क्लैरिटी इसी से ही आ जाएगी. राइट नाउ HCl 0.1 मोलर है और आपके पास H2S भी 0.1 मोलर है. सिंपल केस लिया हुआ है कैलकुलेशन इजी के हिसाब से, है ना. और Ka1 का वैल्यू 10⁻⁷ दिया हुआ है. Ka2 का वैल्यू H2S का 10⁻14 दिया हुआ है. अब ये Ka1 Ka2 क्या है? फर्स्ट डिसोसिएशन, सेकंड डिसोसिएशन कांस्टेंट. ऑलवेज Ka2 इज गोइंग टू बी सिग्निफिकेंटली लोअर देन Ka1. क्यों? क्योंकि पहला वाला जो H प्लस का रिमूवल है दैट इज फ्रॉम H2S, अ न्यूट्रल सब्सटेंस, राइट, एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, राइट. बट आपके पास जो दूसरा H प्लस आपको रिमूव करना है दैट इज गोइंग टू बी फ्रॉम HS माइनस, विच मीन्स एक नेगेटिव चीज से आपको H प्लस हटाना है, विच इज गोइंग टू बी अ रियली डिफिकल्ट थिंग टू डू, राइट. तो नॉर्मली प्रोग्रेसिवली आपके पास अगर ट्राइप्रोटिक है तो Ka1 Ka2 Ka3 होगा, तो Ka3 सबसे छोटा होगा, Ka2 उससे थोड़ा बड़ा होगा, Ka1 उससे भी बड़ा होगा, राइट. तो प्रोग्रेसिवली Ka का वैल्यू कम होता जाता है, बहुत अच्छे से कम भी होता जाता है. जब ट्राइप्रोटिक वाला जो एग्जाम्पल करेंगे H3PO4 का तो थोड़ा और क्लियर होगा ये. बट पॉइंट इज इन पॉलीप्रोटिक एसिड्स द थिंग इज दैट because of this very same reason कि Ka2 is going to be significantly lower, तो आप ये बोल सकते हो कि H plus contribution primarily first reaction से ही आ रहा है. H plus that is coming from the first dissociation is going to be more than sufficient. I mean उतना आप कैलकुलेट कर लो तो more than sufficient है. नॉर्मली अपन ये बोलते हैं कि पॉलीप्रोटिक एसिड को मोनोप्रोटिक एसिड की तरह ही ट्रीट कर लो, रूट K(C) की जगह रूट K(1C) लेना पड़ेगा H plus, राइट. तो अगेन दिस यू विल सी इन योर पॉलीप्रोटिक एसिड्स वाला थिंगी विच वी विल बी डूइंग नेक्स्ट. तो नेक्स्ट सेशन में ये थोड़ा और क्लियर होगा, बट या जो भी, राइट. तो कमिंग बैक, अब इसमें अगर मुझे H2S का स्टैंड अलोन देखना होता, अगर H2S अलोन होता 0.1 मोलर, तो मेरे पास आता रूट Ka1C H प्लस कॉन्ट्रीब्यूशन. तो रूट Ka1C क्या आता? 0.1C है और 10⁻⁷ Ka1 है, तो रूट ऑफ Ka1C आया आपके पास 10⁻⁴ मोलर. ठीक है, तो 10⁻⁴ मोलर मतलब 0.00001, राइट, 0.0001, विच इज वे लेस देन दी HCl वाला कॉन्ट्रीब्यूशन. तो यहां पे आप ये बोल सकते हो कि H प्लस जो है पूरा का पूरा HCl से ही आ रहा है, 0.1 मोलर अप्रोक्सीमेटली. नेग्लिजिबली स्मॉल कॉन्ट्रीब्यूशन होगा H2S का. तो we can say that H plus is equal to 0.1 and pH will be equal to 1. This is directly from HCl. I have not considered H2S का contribution at all. Now going to H2S का dissociation, पहले वाले में 0.1 into 1 minus alpha 1, alpha 1 alpha 2 होता है, second dissociation constant वगैरह ये तो अपन देखेंगे आगे, but yeah, whatever. तो 0.1 into 1 minus alpha 1 आएगा आपका H2S, 0.1 H plus 0.1 अल्फा होना चाहिए था, 0.1 अल्फा 1 भी लिखना चाहिए था, बट वो वी आर नेग्लेक्टिंग इट ऑल टुगेदर. इनफैक्ट सेकंड डिसोसिएशन से भी जो आएगा HS माइनस से, दैट ऑल्सो वी आर नेग्लेक्टिंग. H प्लस टोटल हमने 0.1 मोलर अपफ्रंट ले लिया. HS माइनस 1 आएगा 0.1 अल्फा 1, राइट. अब Ka के एक्सप्रेशन में क्या आएगा? 0.1 इंटू 0.1 अल्फा 1 डिवाइड बाय 0.1 इंटू 1 माइनस अल्फा 1. तो ये आया आपके पास C अल्फा 1 C अल्फा C तो कैंसिल हो जाए. अब Ka1 का वैल्यू आपको दिया हुआ है कि 10⁻⁷ है, राइट. तो 10⁻⁷ डिवाइड बाय 0.1, ये 0.1 अगर उस तरफ ले जाओ तो यू शुड गेट अल्फा 1, राइट. स्टैंड अलोन अल्फा क्या होता है? रूट Ka1/C. ठीक है, रूट Ka1/C आपको दिख रहा है 10⁻⁻3. तो अगर H2S अकेले भी होता तो 0.001 आने वाला था अल्फा, तो उससे तो और कम आने वाला है कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से. तो ये 1 माइनस अल्फा 1 नेग्लेक्ट आप मतलब अप्रोक्सीमेशन अपफ्रंट कर सकते हो. तो ये गायब हो गया, CC गायब हो गया, तो अल्फा 1 आया आपके पास Ka1 डिवाइड बाय 0.1 जो कि आया 10⁻⁶. बहुत कम आया कंपेयर टू रूट Ka1/C. नोट करने वाली बात है, right. Now going to the second dissociation, right. तो alpha 1 I'm guessing 10⁻⁶ is clear. Now in the second dissociation HS minus C1 alpha 1 जो है यहां से बना था, ठीक है. अब ये C1 alpha 1 into 1 minus alpha 2 सेकेंड डिसोसिएशन में alpha 2 है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन into 1 minus alpha 2 होगा, और H2 माइनस आपके पास आएगा C1 alpha 1 alpha 2, C1 alpha 1 into alpha 2, और C1 alpha 1 alpha 2 आना चाहिए था, बट वो H प्लस हमें पता है कि हमें
नेग्लेक्ट करना है, 0.1 नहीं लेना है कमिंग फ्रॉम HCl, राइट। अब ये Ka2 का एक्सप्रेशन अगर देखो तो Ka2 का एक्सप्रेशन आएगा 0.1 इंटू C1 अल्फा 1 अल्फा 2 डिवाइडेड बाई C1 अल्फा 1 इंटू 1 माइनस अल्फा 2। अब ये अल्फा 2 तो बहुत कम होने वाला है अल्फा 1 से भी, और अल्फा 1 10 टू पावर माइनस 6 है, तो अल्फा 2 तो कोई काम का ही नहीं है, तो ये 1 माइनस अल्फा 2 1 नहीं लेंगे अपन, तो ये C1 अल्फा 1 है, तो और ये न्यूमरेटर में C1 अल्फा 1 अल्फा 2 इंटू 0.1 डिवाइड बाई C1 अल्फा 1, C1 अल्फा 1 C1 अल्फा 1 कटेगा, बचेगा अल्फा 2 इंटू 0.1, राइट। तो 0.1 इंटू अल्फा 2 इज 10 टू पावर माइनस 14, अल्फा 2 आया 10 टू पावर माइनस 13। आयनिक में याद रखना कि कोई डायरेक्ट फॉर्मूला बाय हार्ट करके ना रखें, केस के बाय केस आप लिखो पूरा और ढंग से ही सॉल्व करने की कोशिश करना। कोई सीधा फॉर्मूला बाय हार्ट करने का इधर पॉइंट नहीं है, बिकॉज केस टू केस वेरी करेगा, मिक्सचर वगैरह में आपको ढंग से देखना पड़ेगा, इक्विलिब्रियम लिखने पड़ेंगे, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम में सबका कॉन्ट्रीब्यूशन लिखना पड़ेगा, एंड देन मेक वैलिड सेंसिबल अप्रोक्सीमेशंस बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ली शैडलियर्स प्रिंसिपल, राइट। अब H2 माइनस आया, अब अल्फा 1 अल्फा 2 तो मिल गया, H2 माइनस का कंसेंट्रेशन है C1 अल्फा 1 अल्फा 2, तो ये आया आपके पास C1 है 0.1 इंटू अल्फा 1 इज 10 टू पावर माइनस 6 एंड अल्फा 2 इज 10 टू पावर माइनस 13, तो ये आया आपके पास 10 टू पावर माइनस 20। तो अपना अप्रोक्सीमेशन वैलिड है, ये तो दिख ही रहा है, क्योंकि ये जितना H2 माइनस है उतना ही H प्लस दूसरे से मिला है, और वो कितना मिला है 10 टू पावर माइनस 20 मोलर, नेग्लेक्ट, राइट। सेम केस HS माइनस भी अगर मैं कैलकुलेट करूं तो उतना ही H प्लस इधर से भी आया होगा। HS माइनस है आपके पास C1 अल्फा 1 जो कि 0.1 इंटू अल्फा 1 है, तो 10 टू पावर माइनस 7 हो गया, तो 10 टू पावर माइनस 7 तो क्या ही है 0.1 के सामने, तो वो भी नेग्लेक्शन सब सही निकल रहा है, राइट। सो दिस वाज अ मिक्सचर ऑफ अ वीक एसिड एंड अ वीक डाइप्रोटिक एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग एसिड, राइट। अब ये दोनों के बाद वी कैन गो टू मिक्सचर ऑफ टू वीक एसिड्स। अब इसमें पॉलीप्रोटिक भी हो सकता है, मतलब जैसे भी कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे मोनोप्रोटिक वाला लिखा हुआ है, दिस इज अगेन आई टोल्ड यू, अगर डाइप्रोटिक या पॉलीप्रोटिक है तो एक पॉलीप्रोटिक को भी आप अज्यूम कर सकते हो कि इट्स H प्लस इज एंटायरली गोइंग टू कम फ्रॉम फर्स्ट डिसोसिएशन, तो एक पॉलीप्रोटिक को आप एक मोनोप्रोटिक की तरह अप्रोक्सीमेट कर सकते हो विथ Ka एज Ka1, तो रूट Ka1C वाला अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं, राइट। Yeah, so let's say there are two acids HA1 and HA2 and they are simultaneously together in the solution as some final concentration of C1 and C2. Final concentration का I hope समझ में आ गया होगा, 0.2 मोलर का इक्वल मिक्सिंग करोगे तो 0.1 मोलर हो जाएगा फाइनली, है ना। तो फाइनल कंसेंट्रेशन अगर C1 और C2 है और इनके इंडिविजुअल डिसोसिएशन इक्वेशन लिखें तो C1 इंटू 1 माइनस अल्फा 1, C1 अल्फा 1 एंड C1 अल्फा 1, बट C2 अल्फा 2 कॉन्ट्रीब्यूशन तो दूसरे से भी आएगा, तो C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 हो गया H प्लस टोटल। Ka1 की बात करें तो ये आएगा C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 इंटू C1 अल्फा 1 डिवाइड बाई C1 इंटू 1 माइनस अल्फा 1, तो ये आपके पास C1 कैंसिल हो जाएगा, अल्फा 1 कम आने वाला है, पता ही है क्यों, क्योंकि कॉमन आयन इफेक्ट है, दोनों का अल्फा कम होने वाला है, C1 कैंसिल हो जाएगा, तो K1 आएगा आपके पास अल्फा 1 इंटू C1 alpha 1 plus C2 alpha 2, right? Now go into the second dissociation equation. Ka2 will be equal to C1 alpha 1 plus C2 alpha 2 into C2 alpha 2 divided by C2 into 1 minus alpha 2. Again hopefully 1 minus alpha 2 को आप 1 अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, क्योंकि अल्फा कम हो चुका है कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से, C2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा alpha 2 into C2 alpha 2 plus C1 alpha 1 which is your H plus। तो इन दोनों को डिवाइड करोगे तो Ka1 by Ka2 आएगा अल्फा 1 by अल्फा 2। बहुत बार ऐसे सीधा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ द टू एसिड्स इन दिस साइमल्टेनियस सॉल्यूशन, अल्फा 1 by अल्फा 2 डायरेक्टली Ka1 by Ka2 है, राइट। और हेंस यू कैन ऑल्सो से कि H प्लस कमिंग फ्रॉम दैट, इन दोनों का रेशियो भी Ka1 by Ka2 होगा, क्योंकि C1 अल्फा 1 समझ रहे हो, मतलब C अल्फा 1 by अल्फा 2 है तो C1 अल्फा 1 by C2 अल्फा 2 चाहिए, तो एक C1 Ka1 डिवाइडेड बाई C2 Ka2 होगा आपका H प्लस का रेशियो। अगर H प्लस का रेशियो, कंट्रीब्यूशन का रेशियो पूछ रहे हैं तो H प्लस आएगा आपके पास C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2, जो कि आएगा रूट Ka1 C1 प्लस Ka2 C2। समझ में आया कैसे, क्योंकि आपके पास ये जो C1 है उस तरफ ले जाओ तो आएगा Ka1 C1 इक्वल टू C1 अल्फा 1 इंटू H प्लस। Similarly, either Ka2 C2 will be equal to C2 alpha 2 into H plus। दोनों को ऐड कर दो, Ka1 C1 plus Ka2 C2 will be equal to दिस थिंगी का होल स्क्वायर, C1 alpha 1 plus C2 alpha 2 का स्क्वायर, यानी कि H प्लस का स्क्वायर। तो H प्लस आया रूट ऑफ Ka1 C1 प्लस Ka2 C2। अगर आपके पास तीन होते हैं एसिड्स का मिक्सचर तो एक प्लस Ka3 C3 और आता,
जितने भी हो, तो समेशन ऑफ रूट ऑफ समेशन ऑफ KAICI, राइट, I गोइंग फ्रॉम 1 to n एसिड्स अगर है तो दैट इज द जनरल एक्सप्रेशन फॉर H प्लस. तो H प्लस आएगा रूट KA1C1 प्लस KA2C2 प्लस KA3C3 KA4C4 एंड सो ऑन. अब इसमें what you should understand is if water is considered as the third weak acid in the solution, then you will have to add plus Kw also. अब ये कब लेना है ये मैं बताता हूँ. रूट KA1C1 प्लस KA2C2 आप कैलकुलेट करोगे और आया कि ये 10⁻⁶ या उससे कम है. ठीक है, याद रखना वो HCl वाला केस 10⁻⁷ मोलर HCl टाइप का केस हो गया. ये अगर आपके पास कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम योर एसिड्स दैट आर देयर are comparable to the contribution of H plus coming from water, 10⁻⁷ के आसपास आ गया, 10⁻⁶ से बेसिकली कम आ गया, तो you can say that ये पानी का भी कंट्रीब्यूशन कंसिडर करना पड़ेगा. और पानी के लिए ये जैसे KAC जो है वो क्या आएगा, H प्लस इंटू OH माइनस, जो कि पानी का है 10⁻⁴. तो आप ये बोल सकते हो कि KA1C1 प्लस KA2C2 प्लस 10⁻⁴. कब लेना है? अगर ये KA1C1 प्लस KA2C2 का रूट जो है 10⁻⁶ या उससे नीचे आए, राइट. तो अगर बहुत ही कम कंट्रीब्यूशन आ रहा है इन दोनों वीक एसिड्स का, बहुत डाइल्यूट है, उस केस में आपको पानी का भी कंसिडर करना पड़ेगा. तो एक 10⁻⁴ और ऐड कर लो और रूट ले लो, राइट. हमेशा नहीं करना है, याद रखना. पॉइंट भी नहीं है 10⁻⁴ ऐड करके. अगर आपके पास ये दोनों मिला के 10⁻⁴ टाइप्स कुछ आ रहा है तो ऑब्वियसली 10⁻⁴ ऐड करके क्या ही कर लोगे, राइट. एग्जाम्पल भी देख लेते हैं एक लास्ट इस चीज का, एंड देन वी विल गो ऑन टू विल स्पीक अबाउट पॉलीप्रोटिक एसिड्स इन द नेक्स्ट सेशन, राइट. तो अब यहाँ पे क्वेश्चन इज कैलकुलेट द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग equal volumes of 0.02 molar HOCl and 0.2 molar CH3COH. K values दिया हुआ है HOCl का 2 × 10⁻⁴ and K value CH3COH का Ka1 Ka2 डिफरेंशिएट करने के लिए आइडियली सेकंड डिसोसिएशन कांस्टेंट तो है नहीं, CH3COH में एक ही है, Ka ही आता है, Ka1 Ka2 का फंडा नहीं है. बस इन दोनों को अलग करने के लिए Ka1 Ka2 लिखा हुआ है, ठीक है. तो Ka2 जो है जो कि CH3COH का 2 × 10⁻⁵, ठीक है. अप फ्रंट what they have said is okay, calculate OH minus, calculate pH, calculate OCl minus का concentration and also CH3CO minus का concentration, right. अब यहाँ पे the final solution is because of a mixture of equal volumes of these two, तो दोनों का वॉल्यूम आधा हो जाएगा. अगर पानी और ऐड करते इक्वल वॉल्यूम तो 1/2 मतलब समझ रहे हो, मतलब 1/3 हो जाता ओवरऑल कंसंट्रेशन. तो यहाँ पे हाफ हाफ हो गया, तो 0.01 मोलर हो गया HOCl का और 0.1 मोलर हो गया CH3COH का. अब H प्लस के लिए रूट KA1C1 प्लस KA2C2, KA1C1 प्लस KA2C2 का वैल्यू जो है 4 × 10⁻⁶ है. तो ये 10⁻12 के रेंज में तो नहीं है, तो इसका रूट जो है 10⁻6 के रेंज में नहीं आने वाला, तो पानी कंसिडर किया ही नहीं है. सीधा आया रूट KA1C1 प्लस KA2C2 2 × 10⁻3. 2 × 10⁻3 आया. पीएच कैलकुलेट किया 3 - log2. log2 का वैल्यू दिया हुआ है, वैसे पता ही है 0.3 लेना है, और आपका आएगा 2.7 pH, राइट. अब α1 की बात करें तो α1 आएगा K1 डिवाइडेड बाय आपके पास ये यहाँ पे क्या आएगा, देखो K1 की बात करें तो क्या आएगा H प्लस इंटू OCl माइनस डिवाइडेड बाय HOCl, राइट. तो ये आपका 2 × 10⁻³ जो H प्लस है, ठीक है, Ka डिवाइडेड बाय H प्लस ही आएगा अल्फा. दैट इज फ्रॉम द इक्वेशन. आई होप इट इज क्लियर. लेट मी जस्ट राइट डाउन अदरवाइज, राइट. सो आपके पास जो HA है, ठीक है, यहाँ पे एक डिसोसिएशन हो रहा है, HA है which is dissociating to give you H plus A minus, ठीक है, राइट. तो ये आपका C × 1 - अल्फा टाइप्स हो गया. C अल्फा नहीं है, C1α1 प्लस C2α2 है जो भी, तो H प्लस ही रहने दो, उसको अपन H प्लस की तरह ही यूज कर लेंगे, ये इग्नोर फॉर द टाइम बिंग, राइट. अब ये A माइनस जो है ये होगा आपका C अल्फा थियोरेटिकल, राइट. H प्लस C1α1 प्लस C2α2 है, दैट इज व्हाट आई थिंक. तो आपके पास Ka का एक्सप्रेशन आएगा Ka इज इक्वल टू H प्लस इंटू ये C अल्फा डिवाइडेड बाय C इंटू 1 - अल्फा. अब 1 - अल्फा तो 1 ही है, अप्रोक्सीमेशन तो पता ही है, तो ये तो इग्नोर मार दिया, C कैंसिल हो गया, बचा क्या है Ka इज इक्वल टू H प्लस इंटू अल्फा. तो अल्फा क्या आएगा Ka डिवाइडेड बाय H प्लस. तो दैट इज व्हाट वी हैव डन हियर. तो ये दोनों में आपका K α1 ले लिया,
Ka1 डिवाइडेड बाय H प्लस, जो H प्लस तो 2 × 10⁻³ पता ही है, तो 0.1 आ गया। और अल्फा 2 दूसरे एसिड के लिए आया Ka2 विच इज योर CH3COH का डिवाइडेड बाय H प्लस, जो कि 10⁻² आया। तो अल्फा 1 अल्फा 2 दोनों का आ गया। अब ये क्यों है? क्योंकि OCl माइनस चाहिए। OCl माइनस क्या है अपने पास कंसेंट्रेशन? C1 अल्फा 1, राइट। अल्फा 1 तो इधर से आ गया आपका, जो H प्लस OCl माइनस का कंसेंट्रेशन है वो आएगा आपके पास C1 0.01 जो उसका कंसेंट्रेशन है इंटू अल्फा 1 जो कि 0.1 यहाँ से आया, तो 10⁻³ आया। सिमिलरली CH3CO माइनस का आएगा C2 अल्फा 2, तो ये आया आपके पास 0.1 इंटू 10⁻² विच इज 10⁻³ OH माइनस का कंसेंट्रेशन के लिए क्या करोगे? पिछले वाले जो क्वेश्चन किया था वैसे ही है, Kw डिवाइडेड बाय H प्लस, तो 10⁻14 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10⁻³ आया 5 इंटू 10⁻12 मोलर। तो H प्लस कमिंग फ्रॉम वाटर अगर पूछते तो भी यही आंसर आता 5 इंटू 10⁻12। ये बहुत बार ये क्वेश्चन आते हैं कि H प्लस कंट्रीब्यूशन फ्रॉम वाटर अलोन, राइट। बहुत बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ऑल यू हैव टू डू इज फाइंड आउट OH माइनस, उतना ही होगा H प्लस कमिंग फ्रॉम वाटर अलोन, राइट। बाकी ये 5 इंटू 10⁻12 के अलावा 2 इंटू 10⁻³ इज कमिंग बिकॉज ऑफ द 2 weak acids, right? So yeah, this ends our second session as far as our ionic equilibrium ka series is concerned. First में we looked at weak acids and like properties related to water. Second में what we had looked at is like mixtures of different kind of acids, right? अब उसमें फर्स्ट सेशन में ही हमने स्ट्रॉन्ग एसिड्स का मिक्सचर वाला क्वेश्चन किया था बिकॉज इट वाज इजी, वहाँ पे अल्फा इज नॉट अफेक्टेड। यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से अल्फा विल बी अफेक्टेड for weak acids. That's why we have to write down simultaneous equilibrium in most cases and try to find out what is the actual case of contribution of H plus and so on, right? So thanks a lot. You can go ahead and go through more videos from Vedantu, and you can continue to suggest. Some of the students have already spoken about electrochemistry, some of them have asked me about atomic structure. Yeah, primarily I deal with physical chemistry topics, so that is what I'll be doing more or less. I'm studying organic side by side, so once I'm done with that I'll get back to that also. Somebody had asked me about GOC and all also. I'll do it at a stage when I'm ready to do that for you guys, right? Thanks a lot for watching, and like and subscribe, and I hope this kind of helps you out with your mixtures of different kind of weak acids and stuff. Wait for like 12th March to get your video on polyprotic acids, diprotic acids, triprotic acids, all of them we'll be handling one by one, right? Best of luck.